students, welcome again all of you in the very fresh episode of chapter number 10, respiration in organisms. And in this chapter I am going to discuss with you NCERT exemplar problems of this chapter. And as I have already told you, NCERT exemplar problems, it contains a very well researched set of questions which help you to have command on all the concepts which we study in our regular NCERT chapters. So without wasting any time, let's start with question number 1. Sometimes when we do heavy exercise, anaerobic respiration takes place in our muscle cells, and what is produced during this process? So when we do heavy exercise, that time our body produces lactic acid. Now how it happens, let me explain you. When we do heavy exercise, that time energy requirement of our body is very high. Okay, so all the oxygen in the process get used up very fast. That is why our body shifts to anaerobic mode of respiration, means respiration in the absence of oxygen. Okay, so when our body shifts to anaerobic mode of respiration, then lactic acid is produced, and that is why our muscles also pain. So your option number D is the correct one. Now let's move to question number 2. Yeast produced in the wine and beer industries because it respires. Okay, because it respires anaerobically, which produces alcohol. Your option number C is the correct option. Dear students, there is one special quality of the yeast. It is that it respires anaerobically. It do not require oxygen, and during the anaerobic process it produces ethanol and carbon dioxide. Due to this property of yeast, it is used in production of alcohols and ethanol. That is one of the same thing. Question number 3. During the process of exhalation, the ribs move. जब भी एक्सेलेशन होती है तो हमारी रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करती है. और बच्चों, इस प्रोसेस में हमारी जो डायफ्राम होती है, यहाँ पर आप इधर देखिएगा, यहाँ पे जो हमारी डायफ्राम होती है इधर इस कैविटी में, ये डायफ्राम ऊपर की ओर मूव करती है और इससे हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है. हमारी लंग्स में स्पेस कम हो जाता है, प्रेशर क्रिएट होता है जो हमारे भीतर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर इजेक्ट कर देता है. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस दैट, so breathing is a process that, so there are various options. We are given 4 options, and which of the following gives the correct combination of functioning of breathing? Okay, you see, breathing is a process. It provides oxygen to the body. This is correct. Breaks down food to release energy. ब्रीदिंग में फूड की ब्रेकडाउन नहीं होती है बच्चों, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में होती है. रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग चीज़ें हैं. ओके, ब्रीदिंग है हवा का खाली भीतर बाहर आना जाना, लंग्स के अंदर और आना और बाहर जाना. लेकिन रेस्पिरेशन वो सेलुलर लेवल पे होती है. जब वो ऑक्सीजन सेल्स के भीतर पहुंचती है, वहाँ पर मौजूद ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है एनर्जी फॉर्म करने के लिए. इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है. एंड हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है. ब्रीदिंग में ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. आगे है प्रोड्यूसेस वाटर इन दी सेल, ये भी कि बिल्कुल गलत है. सो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, इसलिए योर करेक्ट आंसर इज सी. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. So our question number 5 is, fish breathe with the help of gills which are richly supplied with blood vessels. The gills help the fish to, gills helps the fish to take oxygen from the air. ये नहीं सही है. take the oxygen in dissolved water. yes, ये बात बिल्कुल सही है. तो बच्चों, गिल्स होती है फिश में, ये पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है. फिशेस यूजेस गिल फॉर द गैसियस एक्सचेंज. एज द वाटर इनसाइड एंटर्स इनटू द माउथ, देन इट फ्लोज आउट फ्रॉम द गिल्स. यहाँ से बाहर की ओर ऐसे निकलती हैं गिल्स के माध्यम से.
और गिल्स में होती हैं पतली पतली कैपिलरीज, जो कि ब्लड वेसल्स का भी पतला पतला एक जो इसका रूप होता है, और उस कैपिलरीज के माध्यम से पानी में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अर्थवर्म्स एंड फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन बिकॉज ऑफ विच द स्किन ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्म इज। भैया ये तो मॉइस्ट एंड स्लाइमी होती है, आप सभी ने देखा ही अर्थवर्म्स को। ये मॉइस्ट और स्लाइमी होने की वजह से होता क्या है कि जो भी एयर इनके स्किन के कांटेक्ट में आती है तो उस एयर में मौजूद ऑक्सीजन इनकी बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाता है। ओके, और इस तरह से उस एयर को यूज़ करते हुए, उस डिफ्यूज्ड एयर को यूज़ करते हुए अपनी रेस्पिरेशन करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। So question number 1 है oxygen breaks down glucose outside the cell of organisms। ओके, तो ये तो है भैया बिल्कुल गलत, क्योंकि ऑक्सीजन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन सेल के बाहर नहीं बल्कि सेल के भीतर करती है। फ्रॉग्स कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज लंग्स, ये बात बिल्कुल सही है। इंसेक्ट्स हैव स्पाइरिकल्स ऑन देयर लोअर सरफेस ऑफ बॉडी, ये बात गलत है, क्योंकि स्पाइरिकल उनकी बॉडी के साइड्स में होती है, यहाँ साइड्स में होती है, जहाँ पे उनकी टांगें होती हैं वहाँ साइड्स में होती हैं, लोअर सरफेस में नहीं होती हैं। डी है एक्सेल्ड एयर हैज़ मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन द इनहेल्ड एयर, ये तो बिल्कुल सही है। हम जो बाहर एयर रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। द रूट्स ऑफ plants take up oxygen from the air। ओके, तो यहाँ पे आना चाहिए आपका air trapped between the dash particles, trapped between the soil particles। अगला है diaphragm forms the dash of the chest cavity। so diaphragm forms the floor of the chest cavity। C is exchange of gases in the leaves takes place with the help of, आप जानते हैं, स्टोमेटा की मदद से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी, कॉकरोच ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। तो इनमें एयर ट्यूब्स होती हैं ट्रैकिया, और जो उसकी एंडिंग्स होती हैं उनके बॉडी के साइड्स में होती है उसे हम स्पाइरिकल कहते हैं। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम ईच of the group given below on the basis of respiratory organs, give reason for your answer। तो बच्चों आपको हर ऑप्शंस में से इनमें से ऑड वन को पिक करना है। कॉकरोच, ग्रास हॉपर, स्नेल एंड एंट। इनमें से अगर हम देखें तो इसमें से जो हमें ऑड वन लगता है वो स्नेल लगता है, क्योंकि स्नेल्स में जो कॉकरोच, ग्रास हॉपर और एंट्स में तो होती है इनमें जो रेस्पिरेशन होती है वो ट्रेकिया की मदद से होती है, ट्रेकियल रेस्पिरेशन से होती है, लेकिन स्नेल्स में ट्रेकिया नहीं होते हैं। तो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। लिजर्ड, काऊ, अर्थवर्म एंड स्नेक। तो इनमें अर्थवर्म अलग है, क्योंकि अर्थवर्म में स्किन से रेस्पिरेशन होती है, इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं, सी से स्टार्ट होता है क्यूटेनियस की स्पेलिंग। जबकि लिजर्ड, काऊ और स्नेक्स में इनमें लंग्स होती हैं, अर्थवर्म में लंग्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट, इसमें से हमने देखना है क्रोकोडाइल, व्हेल, डॉल्फिन और फिश में अलग कौन से। इनमें फिश सबसे अलग है, क्योंकि फिश में गिल्स होती हैं, जबकि क्रोकोडाइल, व्हेल और डॉल्फिन्स में लंग्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर डी में स्नेक, टेडपोल, क्रो और गोट। इनमें टेडपोल सबसे डिफरेंट है, जबकि स्नेक, काऊ, क्रो और गोट इन सभी में लंग्स होती हैं, जबकि टेडपोल में लंग्स नहीं होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। Which gas present in air is essential for aerobic respiration and what is the role of oxygen during respiration? तो भैया एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हमें एटमॉस्फेरिक एयर एसेंशियल होती है, और रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये ऑक्सीजन हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करती है। फूड गेट्स ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इट रिलीजेज एनर्जी, और उस एनर्जी की वजह से ही हम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। On an average, an adult human being at rest breathes 15 to 18 times per minute. The breathing rate, however, may differ under different conditions. Arrange the following activity given in the box in order to increase the breathing rate and give reasons for your answer.
तो बच्चों इसमें आपको ब्रीदिंग रेट को अरेंज करना है। जो सबसे स्लो ब्रीदिंग रेट होगी वो तो होगी स्लीपिंग के समय में, और उससे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगी वॉचिंग टीवी के समय में, और उससे ज़्यादा जो आपकी ब्रीदिंग रेट होगी जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, ब्रिस्क माने फास्ट वॉक, और सबसे ज़्यादा आपकी ब्रीदिंग रेट होगी जब आप साइकिलिंग करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी को विगरस करते जाते हैं हमारी ब्रीदिंग रेट भी फास्ट होती जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाती है। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम हैवी काम करते हैं तो हमें एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी भैया जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ ब्रेक डाउन करके वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करेगा। So if energy requirement is more, oxygen requirement will be more. Question number 12. On a very cold morning, Bujo or Paheli were talking to each other as they walked down to their school. They observed that the air coming out from their mouth looked like a smoke, and they were amused and wondered how it happened. Help them find the answer. तो भैया सुबह के समय में जब भी हम बात करते हैं तो मुंह से लगता है धुआं निकल रहा है। ऐसा होता इसलिए है कि जब मौसम बहुत ठंडा होता है तो हमारे मुंह से निकला हुआ मॉइस्ट एयर वो ठंडे एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आता है और वो कंडेंस हो जाता है। तो जब कंडेंस हो जाता है तो वो टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में चेंज हो जाता है, जो हमें दिखते हैं स्मोक की तरह। तो एक इतनी सी कहानी है। नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12 वी स्विच टू क्वेश्चन नंबर 13। Whenever we feel drowsy or sleepy, we start yawning. Does yawning help us in any way? जब भी हमें बहुत सुस्ती आती है, नींद आने लगती है, तो हम जो है जमाइयाँ मारने लगते हैं। जमाइयाँ हमें किस तरह से हेल्प करती हैं? देखिए भैया, when we feel very sleepy, that time our rate of respiration becomes very slow. Now because of this slow respiration, our lungs do not get enough of the oxygen, and we yawn because yawning helps to draw extra oxygen to the lungs and helps us in keeping awake. Okay, so अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आज हम इस क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं इंसेक्ट्स एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव पोर्स थ्रू विच दे एक्सचेंज गैसेस विद एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है। कैन यू राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज पोर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन, नंबर एंड एक्सटेंशन टू द बॉडी। तो भैया इंसेक्ट्स हैं, लीव्स हैं, दोनों में पोर्स होते हैं। इंसेक्ट्स के पोर को हम कहते हैं स्पाइरिकल्स और लीव्स के पोर को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो हमने इनके डिफरेंसेस बताने हैं इनकी पोजीशन में। देखिए भैया, जो पोजीशन है स्टोमेटा की वो तो होती है लीव के एग्जैक्टली नीचे, लेकिन इंसेक्ट्स में जो ट्रैकिया होता है उस ट्रैकिया की पोजीशन होती है अलोंग दी साइड ऑफ बॉडी। ओके, आगे हम करते हैं नंबर। भैया जो आपके ऐसे जो नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा। ओके, इट इज़ वेरी लार्ज इन नंबर बट स्पाइरिकल्स आर लेस इन नंबर। एक्सटेंशन टू द बॉडी, स्पाइरिकल्स हमारी बॉडी में एक्सटेंड करते हैं और पतली पतली ट्यूब्स की फॉर्म में वो पूरे हमारी बॉडी में एक्सटेंड करती हैं, इसे हम कहते हैं ट्रैकिया। लेकिन जो स्टोमेटा होती हैं इनके अंदर ऐसा कोई ट्रेकियल सिस्टम या ट्यूब सिस्टम नहीं होता। ये सिर्फ लोअर सर्फेस ऑफ द बॉडी पे छोटी छोटी होल्स के रूप में मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 15। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 में है, पहली पार्टिसिपेटेड इन ए 400 मीटर रेस कॉम्पिटिशन हेल्ड एट her school and won the race. When she came home, she had mixed feeling of joy and pain as she had cramps in her leg muscles. After a massage, she was relieved of pain. Answer the following question related to the situation. 400 मीटर की रेस में पहली ने भाग लिया और जब वो आई घर में तो उनकी टांगों में दर्द हो गया। अब आपको बताना है कि क्या वजह हो सकती है कि उनकी पहेली को उनकी लेग्स में क्यों दर्द हो रहा है। तो बच्चों पहेली इन हर लेग माइट बी पेन इन हर legs might be because of accumulation of lactic acid in her muscle, because when we do heavy physical activity then muscle cells respire anaerobically. I have already told you, and anaerobic respiration lead to production of lactic acid and it causes pain.
क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड शी फील कंफर्टेबल आफ्टर मसाज। जब हम मसाज देते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसकी वजह से इंक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड हो जाती है, इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है हमारे मसल सेल्स में, और इसकी वजह से लैक्टिक एसिड की ब्रेकडाउन जो है जल्दी से हो जाती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जब लैक्टिक एसिड ख़त्म होता है तो हमारी बॉडी में पेन भी ख़त्म या कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक फिगर दिया गया है, हमें इसको देख करके केयरफुली आंसर देना है। देखिए पहला फिगर है, एक प्लांट है, दूसरे फिगर में प्लांट है और उसमें कुछ चूहे भी हैं, और तीसरे फिगर में चूहे हैं, सभी के ऊपर जार कवर किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि इन विच जार द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी हाईएस्ट एंड वाई। भैया सी जार में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे चूहे हैं और ये रेस्पिरेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे। लेकिन जो बी है वहाँ पे प्लांट भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो रिलीज़ की है उन्होंने, चूहों ने, उसको प्लांट्स जो है एब्जॉर्व भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच जार विल दी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लोएस्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है सबसे कम होगी जार नंबर ए में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लांट है, यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाला चूहा मौजूद नहीं है, ओके, या दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम आते हैं, यहाँ पे दो फिगर्स दिए गए हैं। पहले फिगर में वाटर है और इसमें पहेली ऑक्सीजन जो है फूंक रही है, दूसरे में लाइम वाटर है, इसमें भी पहेली ऑक्सीजन फूंक रही है। अब हमसे सवाल ये किया गया है कि विच प्रोसेस इज बीइंग टेस्टेड इन दिस एक्टिविटी। तो भैया ये एक्टिविटी की गई है ये प्रूव करने के लिए कि ड्यूरिंग एक्सलेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। क्वेश्चन बी है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। तो जार बी है, जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एक्सेलेशन में, तो ये लाइम वाटर के साथ मिल करके उसे क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लेकिन यहाँ तो लाइम वाटर है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ फूड स्टॉल ओनर वॉज प्रिपेयरिंग डव फॉर मेकिंग भटूराज। He added a pinch of yeast and sugar to the dough and left it in a warm place. After a few hours, the dough has risen. There was a sour smell too. तो हमने बताना है कि वो जो गूंदा हुआ आटा डव है वो राइज क्यों हुआ। ये राइज इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करने लगते हैं, और उस माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम यीस्ट, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, इट मेक्स डव टू राइज। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड डव स्मेल sour ड्यूरिंग anaerobic respiration? Yeast produce alcohol. Following it, yeast produces alcohol and this gives sour smell to dough. क्वेश्चन नंबर सी, वाई वॉज शुगर एडिड टू डव। शुगर हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि शुगर एक्ट एज ए फूड फॉर द यीस्ट, तो ये यीस्ट को ग्रो करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द डव वॉज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर सून आफ्टर इट वॉज प्रिपेयर्ड। अगर हमने गूंदे हुए आटे को एकदम से रेफ्रिजरेटर में रख दिया होता तो यीस्ट जो है रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, डव राइज नहीं करता और सावर स्मेल प्रोड्यूस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्जर्व द फिगर गिवन एज फिगर 10.3a एंड b. आंसर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फिगर ए आउट ऑफ फिगर a and b indicate the process of inhalation and which the process of exhalation, okay। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर इनहेलेशन को बता रहा है और कौन सा एक्सेलेशन को बता रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियर है बच्चों कि इनहेलेशन का प्रोसेस है आपका फिगर नंबर ए। जब भी आपकी बॉडी की जो डायफ्राम है वो आती है नीचे की तरफ, ये डायफ्राम मूव कर रही है नीचे की तरफ, तो और जो रिब्स आती हैं बाहर की तरफ, तो हमारे लंग्स में स्पेस ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और इसकी वजह से बाहर की एयर भीतर आराम से आ जाती है, या ऑक्सीजन जिसे हम कह रहे हैं। जो आपका फिगर नंबर बी है ये है एक्सेलेशन का प्रोसेस, इसमें डायफ्राम जा रही है ऊपर की तरफ, ओके, डायफ्राम मूव्स बैक, ओके,
and ribs moves back and downward. Okay, so इसकी वजह से हमारे लंग्स में भीतर जो है प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और ये हमारी अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर एक्सपेल कर देती है। ये देख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। ओके, और ए फिगर ए में ये एरो यहाँ पे ऑक्सीजन भीतर की ओर आ रही है। तो ये हमने आपको इस प्रोसेस में जो भी मूवमेंट्स यहाँ पे पूछा गया है, मूवमेंट ऑफ एयर आपको बता दी, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम आपको बता दिया और मूवमेंट ऑफ रिब्स भी आपको एरो से समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन कॉलम्स को हमने मैच करना है। बटरफ्लाई में होते हैं स्पाइरिकल्स। ओके, स्पाइरिकल्स की मदद से ये रेस्पिरेशन करती है। अर्थवर्म में स्किन से रेस्पिरेशन होती है, इसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। स्पैरोज में लंग्स होते हैं और फिश में गिल्स होते हैं। So dear student, these were the NCERT exemplar problem. I hope you enjoyed this session, and if you have liked this video, I want all of you to like, subscribe and share my channel with your friends also. I will keep bringing such videos for your academic development, for your growth in life. And till I bring the next video, I want all to stay fit, all to stay motivated. Keep studying, keep rocking. Thank you. Bye bye.